Now, in how many ways a person can watch a movie? Okay, in how many ways a person can watch a movie? आप समझो ऐसा है, okay, think of it as like this कि 1 2 3 4 and 5, ठीक है, there are 5 entries and exits, तो E1 E2 E3 E4 and E5. So let's think as like this, in how many ways can a person watch a movie? Okay, watch a movie and come back. तो imagine a person is standing outside. अब वो बोलते हैं सबसे पहले watch a movie and come outside. तो मुझे पता है जाने के लिए the person has 5 options and उसमें से you choose one, that is 5C1. 5C1 is 5. मूवी देखा चिल के अंदर, आने के लिए ऑल्सो देर आर 5 एग्जिट्स, तो जाने के लिए 5 एंट्री है, आने के लिए 5 एग्जिट्स है, तो दिस विल बिकम 5C1 विच विल बिकम 5 times 5 विच इज 25 वेज. ओके, तो जाने के लिए 5 ऑप्शन था, आने के लिए 5 ऑप्शन है, तो जाने के लिए 5 लगा एंड आने के लिए 5 लगा, तो 5C1 times 5C1 इज इक्वल टू 5 into 5 is 25. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया कि सेकेंड पार्ट बोला है एंट्री अलाउड थ्रू E1 एंड E5. अब बोला है एंट्री अलाउड थ्रू E1 एंड E5, तो मुझे पता है कि 2 ऑप्शंस है एंट्री का, तो आई विल टेक दिस एज 2C1 एंड मूवी देखा, बाहर आने के लिए कुछ कंडीशन नहीं है, तो I will not think too much, so it will become 5C1 which will become 2 times 5 which is equal to 10 ways. Has everybody understood this? And जाने का मतलब when there is no condition, जाने का 5 ऑप्शन है, आने का 5 ऑप्शन है, तो basically 5 times 5 is equal to 25. Has everybody understood this? So you have to read the question carefully कि हम कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे. Next one. In how many ways a person can go to Delhi? In how many ways a person can go to Delhi by Jaipur and come back टू कोटा अगेन? ठीक है, कोटा से जयपुर जाने के लिए देर आर 5 वेज, 5 रास्ते हैं, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं. दे आर सेइंग दैट नो कंडीशन इज गिवन. इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो टू दिल्ली बाय जयपुर एंड कम बैक टू कोटा अगेन? सो सबसे पहले कैन यू टेल मी, कोटा से जयपुर जाने के लिए कितना ऑप्शन है? तो 5 ऑप्शन है, उसमें से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो 5C1. जयपुर से दिल्ली जाने के लिए कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, वी विल चूज़ वन, दैट इज़ 3C1. दिल्ली में थोड़ा चिल किया, दिल्ली से जयपुर आने के लिए कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, तो 3C1. एंड जयपुर से कोटा आने के लिए कितना ऑप्शन है? 5C1. सो दिस विल बिकम 5 times 3 times 3 times 5 which is 225 ways. Anybody has any doubts here? but थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं. नॉट द सेम रूट. अब बोला है यू कांट टेक द सेम रूट, ठीक है, वी कांट टेक द सेम रूट. अब व्हाट हैव आई डन इज आई स्टार्ट फ्रॉम कोटा. कोटा से जयपुर जाने के लिए आई हैव 5 वेज, उसमें से मैंने एक को सेलेक्ट किया. समझो आई हैव टेकन दिस वे, तो इसको मैंने मार्क कर दिया. जयपुर से दिल्ली जाने के लिए देर आर 3 वेज, आई हैव टेकन 1, सो 3C1. समझो मैंने ये इसको मार्क कर दिया.
Now I have been told that I am not supposed to take the same route again. So can you tell me, Delhi से जयपुर जाने के लिए how many options are left now? Two options. Lovely. So this will become 2C1. And can you tell me from Jaipur to Kota how many options are left now? 4C1. So guys, this will become 5 times 3 times 2 times 4. Bolo. 120 ways. Did you guys understand this? Anybody has any doubts here? तो ये समझ गया कि depends on what the conditioner said, they can take the same route, they cannot take the same route, vice versa. ठीक है? Now, the next condition. Okay, the next question, sorry. A has 7 wives. Okay, A has 7 wives. Each wife has 7 children. Okay, have 7 sons, and each son has 7 girlfriends. Find number of ways in which A can meet each girlfriend. Bolo. Think. A very simple, straightforward 5-second question. The time taken to write the question, that is more than getting the answer. So think from a logical point of view. मुझे पता है कि A has 7 wives, तो you have to meet each girlfriend. तो देखो कैसे रहेगा. सबसे पहले a person A has 7 wives. तो what that person A will do is, that person A will select one person from those 7 person. तो क्या हो जाएगा? 7C1. One person is selected. अब वो 1 person के there are 7 kids, उसमें से they will select 1 son, तो उसका क्या रहेगा? टाइम्स 7C1. अब वो सन के हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स आर देयर, उसमें से they will meet 1, तो कितना रहेगा? 7C1. So the answer is 7 times 7 times 7, which is 49 times 7. 243. पक्का? श्योर ना कि 343? 343. Lovely. Because the pattern समझो, it's a layered sum, कि 7 में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, या तो फर्स्ट वन या तो सी 7 वेज मतलब क्या होता है? या द पर्सन विल सेलेक्ट द फर्स्ट वाइफ और द सेकंड वाइफ और द थर्ड वाइफ और द फोर्थ वाइफ और द फिफ्थ वाइफ और द सिक्स्थ वाइफ और द सेवेंथ वाइफ. 7 वेज हो गया. नाउ दैट वाइफ हैज 7 किड्स, मतलब या तो फर्स्ट किड या तो सेकंड किड या तो थर्ड किड या तो फोर्थ किड या तो फिफ्थ किड या तो सिक्स्थ किड या तो सेकंड सेवेंथ किड. And is multiplication, and when there are 7 girlfriends are taken care of, so you have the first girlfriend, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. So these are the total number of ways. You can actually manually do it. कि first wife का first kid, first wife का second kid, third kid, fourth kid, fifth kid, seventh kid. Number of ways that will come is 343. This is the total number of ways. Has everybody understood this? So you need to understand कि भले ही इतना difficult लगता रहेगा, difficult है नहीं. This is how we approach with the questions. Please work on the data that has been asked. No assumptions when you're doing permutation combination. Next. अब देखो. In how many ways can car number plates, in how many ways can car number plates be made if each plate has 2 different letters of English followed by 3 different digits
ठीक है. नाउ इसमें ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. 3 डिफरेंट डिजिट्स. अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दूंगा, फॉलो न्यूमेरिकल सिस्टम. ठीक है, फॉलो न्यूमेरिकल सिस्टम. सेकेंड, नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल सिस्टम. So we have to be very careful. Okay? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले they have asked us कि मुझे नंबर प्लेट निकालना है. तो ज़रा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिए. डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश alphabets. Different letters of English alphabets. So I'll start with the first. We know, everybody knows कि there are 26 letters in the English alphabet. तो यहाँ पे I will write the first में I will write it as 26C1. एक अल्फ़ाबेट को चूज़ किया, उसको निकाल दिया. डिफरेंट बोला है तो नेक्स्ट आएगा 25C1. अब बोला है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल सिस्टम. अब देखो गाइस, मुझे चाहिए 3 नंबर्स, मुझे चाहिए 3 डिजिट नंबर, डिफरेंट 3 digits followed by 3 different digits. मतलब एक 100th place, 10th place and units place. Can you tell me 100th place में कितना ऑप्शंस है? 10 की 9? You can't use 10. 012 is a 2 digit number or a 3 digit number? 012 is a 2 digit number or a 3 digit number? तो how can you use 0 here? So remember कि आप कितना ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? 9 ऑप्शंस. यहाँ पे कितना ऑप्शन रहेगा? 9 ऑप्शंस. वाई? देखो आई राइट इट हियर. सुनो, देखो यहाँ पे देख रहा हूँ. देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ध्यान दो, दिस वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दिस प्लेस के लिए ना 0 नहीं रहेगा. दिस प्लेस के लिए 0 नहीं रहेगा. ये दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? 9. समझो मैंने एक नंबर को निकाल दिया, ये नंबर को निकाल दिया, ये नंबर को निकाल दिया. फॉर द 10th प्लेस, इफ यू ध्यान से इफ यू सी, यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 ऑप्शंस अवेलेबल. मैंने एक और नंबर निकाल दिया एंड आई हैव 8 ऑप्शंस अवेलेबल. सो बेसिकली दिस विल बिकम 9C1 times 9C1 times 8C1. This is the total number of ways. So you can leave it like this because calculation बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So this will become 26 times 25 times 9 into 8 in 9 into 9 into 8. 9 into 8. So these are the number of ways. ठीक है, these are the number of ways. But अब बोला है not according to the numerical system. अब यहाँ पे अच्छा होगा कि बोला है कि not according to the numerical system. So the only change will become that 26C1 into 25C1 into 10C1 into 9C1 into 8C1, which is 26 into 25 into 10 into 9 into 8 ways. Did you guys understand this? Anybody has any doubts here? So I have specifically mentioned because ये हमेशा होता है, बिकॉज नंबर प्लेट में ना इफ़ यू फॉलो, ऑब्वियसली वी हैव सीन कार्स जहाँ नंबर रहेगा 007 विच इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, बट सिंस इज नंबर प्लेट आई कैन कॉल इट 0123. इट्स नॉट अ 4 digit number, it's a 3 digit number according to the numerical system. But if I just have to make a number plate, I can write it as 1234, which is perfect. But 0123 not perfect. 0001, it's not a 4 digit number, it's a single digit number. Has everybody understood this? So you have to be very careful as to what has been asked. Next, every telephone number consists of 7 digit. Every telephone number consists of 7 digits. How many telephone numbers are there
which do not include 2, 3, 5, 7. मुझे 7 डिजिट नंबर चाहिए. अच्छा, which do not include any other digit except 2, 3, 5, 7. ठीक है, थोड़ा सिंपल वे में जाते हैं. पहले लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल पार्ट. I have to form a 4-digit number, 7-digit number, I'm sorry. I have to form a 7-digit telephone number which should not include any other digit except 2, 3, 5 and 7. I repeat, which does not include any other digit except 2, 3, 5 and 7. Let's try to get the answer. ठीक है, ओके. हाउ डू वी प्रोसीड दिस? First digit can be chosen from 4 ways, from 4 numbers. In how many ways? 4C1. ओके, यहाँ पे लिख दिया 4C1, यहाँ पे 4C1, यहाँ पे 4C1, 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 which will become 4 raised to 7 ways. Have you understood this? That's it. कुछ नहीं बोला है रेपिटेशन वाला. अब मैंने अगर क्वेश्चन बोल दिया कि 2, 3, 5, 7 को नहीं यूज़ करना, समझो. ओके, सेकेंड पार्ट लेते हैं. ओके, सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ. डज नॉट इंक्लूड 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 मतलब अब सबसे पहले देखेंगे कितना डिजिट बाकी है. 0, 1, 4, 6, 8, 9, 6 बाकी है. फर्स्ट प्लेस में हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? 6C1. पक्का 0 आएगा क्या? 0 आएगा? यू हैव टू. नो नंबर स्टार्ट्स विद 0. यू हैव टू फॉलो. वो वहाँ पे सिर्फ मेंशन किया था. तो यहाँ पे यू विल गेट 5C1. नेक्स्ट में 6C1, 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 6C1 and 6C1. So this will become 5 times 6 raised to 6 ways. Has everybody understood this? Because 0 से start नहीं होगा. अगर कोई चीज़ को 0 से स्टार्ट किया, इट विल बिकम अ 6 डिजिट नंबर. क्लियरली बोला है, यू हैव टू फॉर्म अ टेलीफोन नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट एंड henceforth will be following the number system. Number plate, car number plate was a different sum, but you follow the normal number system. ठीक है. Now remember this, what you can do is, अभी ना एक I'll just write this कि whenever you are solving this, इसका क्वेश्चन ले लेते पहला. The question is number of ways in which we can put 4 letters in 5 letter boxes. Number of ways in which we can put 4 letters in 5 letter boxes. 4 letters in 5 letter boxes. बोलो. Can you tell me what will be the answer? 4 raised to 5. 4 raised to 5. कैसे? In the first letter box we can put 4C1 ways. तो there are 5 letter boxes. समझो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5. So first में कितना आएगा? हाँ 4C1. क्या रहेगा इन नंबर ऑफ वेज? 4 लेटर्स. हाँ बोलो क्या रहेगा? एक ही डालेंगे क्या?
can choose all the letters in 26C1 times. 26C1 लेटर्स कौन सा पोस्ट लेटर खत चिट्ठी चिट्ठी अल्फ़ाबेट्स थोड़ी अल्फ़ाबेट क्यों डालेगा मैं लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालेगा ना मैं चिट्ठी के बॉक्स में बोलो 4 चिट्ठी है किसको भेज रहे का अपने पता नहीं है मेरे पास 5 लेटर बॉक्स है हाउ विल आई अरेंज इट हाउ विल आई सेलेक्ट इट बोलो The first box we can put 4C1 ways. ओके Second box 3C1 ways. ओके Third box 2C1 and the fourth box. 1C1 तो इसे छोड़ देंगे कैन आई पुट फर्स्ट में 2 लेटर्स अच्छा अब मेरे को सेकंड में नहीं मेरे को लास्ट में डालने का कैन आई पुट बाकी 3 ईयर डाल सकते हैं ना कोई कंडीशन ही नहीं हाउ डू आई राइट इट थिंक 4C4 ठीक है फिर सेकंड में नहीं डाल सकते ना लेटर खत्म हो गया ये भी नहीं बोले हर लेटर में कितना डालने का 5C1 मतलब यू आर सेलेक्टिंग द लेटर बॉक्सेस हाँ फिर The same for all 4 letters. No, there are 5. You can choose which one to select. चल हमने इसको सेलेक्ट कर दिया ये लेटर बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया अभी The next one will also have 5 options. नो नो लेटर्स को डालने का ना बॉक्स के अंदर Yeah, so the second letter also you देख सकते हो ना कौन सा बॉक्स बना हुआ so उसका भी 5 इफ़ यू डू 5C1 मतलब 5 लेटर बॉक्स में से यू आर सेलेक्टिंग 1 लेटर बॉक्स वो सेलेक्ट कर दिया तो उसमें लेटर डाल रहे कि नहीं डाल रहे हैं कितने डाल रहे हैं एक डालेंगे चलो एक डाल दिया सो 5C1 इंटू 4C1 चलो डाल दिए अब बचा है 4 लेटर बॉक्स और 3 लेटर्स क्या करेंगे 5C4 रिमेंबर दिस ध्यान से सुनो ये कंफ्यूजन जब होगा एक सिंपल यूज करो इमूवेबल रेज टू मूवेबल आई होप एवरीवन नोज हाउ अ पोस्ट बॉक्स लुक लाइक लेटर मूव होता है कि पोस्ट बॉक्स मूव होता है कि आज पोस्ट बॉक्स मुंबई में है कल अचानक बड़ौदा पहुंच गया ऐसा नहीं होता लेटर पहुंचता है व्हाट इज इमूवेबल हियर हाउ मेनी आर देयर how many letters are there that's it did you understand बस हाँ तो you stop ना उसके बाद क्या बोलोगे I said for all 4 5C1 ही होगा कैसे एक पोस्ट बॉक्स निकल गया नेक्स्ट क्या बचेगा 4C1 3C1 2C1 सी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू सेड वाज 5C1 इंटू 4C1 मतलब इसमें एक लेटर डाल दिया फिर हो जाएगा 4C1 इंटू 3C1 फिर हो जाएगा 3C1 इंटू 2C1 फिर हो जाएगा 2C1 इंटू 1 सो दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल एंड दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल अब ये सेम है कि नहीं है वो अपने को चेक करना पड़ेगा हाउ मच इज़ 5 raised to 4 625 हाउ मच इज़ 5 फैक्टोरियल 120 हाउ मच इज़ 4 फैक्टोरियल 24 अब बताओ 120 इंटू 24 कितना होएगा नहीं होगा आई यू अंडरस्टैंडिंग सो यहाँ पे ना अपने को लेटर्स बोला नहीं है कितने में क्या डालना है तो रिमेंबर दिस सी यू हैव टू अंडरस्टैंड या तो सब एक में जाएगा या तो इट विल बी 1 1 1 1 0 और इट विल बी 1 2 1 0 0 बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस व्हेन एवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम सबसे पहले देखो ये इमूवेबल है क्या अगर है जस्ट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट एंड इट विल बिकम ईजियर फॉर यू रिमेंबर दिस Has everybody understood this? Now, attention. Whenever there are 2 results, okay, the next concept that we are going to do, it's very important for you to understand. देखो, 2 results कभी कभी possible है. Yes, no. True, false. Black, white. Yes, no. True, false. Yes, no. हेड्स टेल्स ब्लैक वाइट कार्ड्स में अगर कार्ड्स में भी 2 कलर रहेगा रेड एंड ब्लैक जब 2 ऑप्शन रहेगा ना सिर्फ 2 ऑप्शंस वी आर गोइंग टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट नाउ आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट एवरीवन इन दिस क्लास नोस whenever you toss a coin, whenever you toss one coin,
Can you tell me the possible outcomes? Heads and tails. ठीक है. Let's take one more example. In your classroom, in whichever standard you were before, whichever school you were before, whenever you had to select a class monitor or the head boy of the school or head girl of the school, or we'll go with a class monitor. ठीक है. So the class monitor might either be a boy or a girl. ठीक है. Whenever you write a question, a true false question, ठीक है, true false question, your answer will either be true or your false. If you had to solve a yes no question, your answer would be a yes or a no. Perfect. Third answer था ही नहीं. Black and white. If you had to choose between two colors, either it will be one color or the other color. Mix नहीं होता. Mix कभी नहीं होती. You cannot get coin. Oh my God. Heads and नहीं आ सकता है true or false साथ में. Until unless the coin is not biased. Unbiased. ये सब examples है class monitor. Obviously, you'll select either a boy as a class monitor or a girl as a class monitor. You'll either get the answer as a true or a false. You'll never get an answer both true and false. नहीं हो सकता है. It can be only answer, and this is yes or no. Either the answer will be yes or no. Example, have you eaten? Yes, या तो no. I have not eaten. Yes, I have eaten. There is no third answer. So whenever you get these kind of options, we always go with the sample space of 2 raised to n. ये मेरा sample space रहेगा. I'll give you an example. Okay, example that we are aware of. 2 raised to n कभी possible रहेगा. देखो, whenever one coin is tossed, you get the answer as heads or tails. 2 raised to 1, that is 2. देखो 2 options आ गए. Whenever 2 coins are tossed, my options are heads heads, heads tails, tails heads and tails tails, which is 2 square, which is 4. Has everybody understood this? Whenever 3 coins are there, heads heads heads, heads heads tails, heads tails heads, heads tails tails, ये 4 heads का condition आ गया. Tails heads heads, tails heads tails, tails tails heads and tails tails tails. 1 2 3 4 5 6 7 8, which is 2 cube, which is 8. The same with 4 coins. Same with yes no. Same with true or false. Same with the class. Any जहाँ पे 2 option रहेगा ना. Always think whenever you come across a question जहाँ पे you know there are only 2 outcomes, use the trick of 2 raised to 8. अब देखो ना 3 coins का count करते ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 raised to 8. सब में स्पेशलिटी क्या रहता है ना, क्या ये कॉम्बिनेशन का, this thing that everyone is aware of. No condition is repeated. No condition is repeated. Now imagine ये same example, okay, same example, same, exactly the same example. Imagine you write an exam. We all know there are 2 outcomes of an exam. What are the 2 outcomes of an exam? Either you will pass or you will fail. Think of passing as heads. Think of failing as tails. ठीक है, आप ध्यान से समझो. तुम लोग 2 एग्जाम लिख रहे हो, 2 एग्जाम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश हिंदी, एनी 2 सब्जेक्ट्स. Either you will pass both, you will pass the first, you will fail the second, you will fail the first and you will pass the second, or you will fail both. समझा? देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. समझो देर आर 2 एग्जाम्स. ठीक है, 2 एग्जाम्स. अब 2 एग्जाम्स का आउटकम क्या रहेगा? आइदर यू विल पास बोथ, यू विल पास वन, यू विल फेल सेकेंड, you will fail first, you will pass second and you will fail both. अच्छा, can you tell me what is the number of outcomes? मेरा sample space क्या रहेगा? 2 raised to 2, which is 4 ways. I'll ask you a simple question. In how many ways will you fail? बोलो. In how many ways will you fail? 3 ways. 3 ways? Sure. Key 1 way.
failed only once in 2 ways. पास या फेल, अगर तुम लोग ने 2 एग्ज़ाम लिखा है एंड अगर मैं बोलूँगा कि हैव यू पास्ड और फेल, हाउ डू यू जज वेदर यू हैव पास्ड और फेल व्हेन यू हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? व्हेन यू राइट इन एग्जाम, तुम लोग के रिजल्ट में अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो यू आर पास और फेल? फेल। तो वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन हाउ मेनी वेज will you tell me whether you have passed or failed? In how many ways will you have failed? 3 ways. Remember this. याद रखो, I'm giving an example. तो failed is basically 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1, which is 2 square minus 1, which is 3 ways. Can you tell me in how many ways you have passed? हमेशा याद रखो, in how many ways you have passed. एक ही कंडीशन रहता है ना जहाँ पे सब हेड्स रहता है, एक ही कंडीशन. सब हेड्स इज समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू कि आई हैव पास्ड. सो नंबर ऑफ वेज यू हैव पास्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1. कि इन हाउ मेनी वेज विल दैट इवेंट अकर, द ओनली 1 वेज ऑफ दैट इवेंट अकरिंग. एक ही वे होगा दैट द इवेंट विल अकर पूरा सक्सेसफुली, कि फर्स्ट में भी पास हो गया, सेकंड में भी पास हो गया, थर्ड में भी पास हो गया, फोर्थ. इमेजिन यू आर राइटिंग 7 पेपर्स. इन हाउ मेनी वेज विल यू पास? देयर इज ओनली 1 वे. एंड व्हाट इज द कंडीशन वेयर यू हैव टू पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स? कैन यू टेल मी इन हाउ मेनी वेज यू नीड फेल? 2 raised to 7 minus 1. You can fail in 1 subject or 2 subject or 3 subject or 4 subject or 5 subject or 6 subject. Has everybody understood this? This is where ना you follow द कंडीशन. जब जहाँ पे भी 2 आउटकम्स रहेगा ना, 2 आउटकम्स, मेरा बात ध्यान से सुनो, जहाँ पे भी 2 आउटकम्स रहेगा, सिर्फ ये सोचो कि हेड्स एंड टेल्स का कंडीशन फॉलो करना है. हेड्स एंड टेल्स का कंडीशन. सो इफ़ यू फॉलो हेड्स एंड टेल्स का कंडीशन, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू कि ओके 2 raised to n is the sample space. Number of ways in which the event will occur successfully is always 1. And number of ways in the event will not occur successfully is 2 raised to n minus 1. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? तो इसके ऊपर से ना when you start with the question, देखो when we start with the question, ठीक है, it's like this. 10 true false questions are given. ठीक है, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आर गिवन. सबसे पहले हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स पॉसिबल? बोलो, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर पॉसिबल? 2 raised to? लवली. सो इसका आंसर रहेगा 2 raised to 10 ways. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? सब लोग को समझाइए. बिकॉज 2 raised to n, मेरा सैम्पल से 2 ही आउटकम है, या तो ट्रू या तो फॉल्स. तो हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर इज पॉसिबल? इट इज 2 raised to n. सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच राइट आंसर कैन बी गिवन. बोलो, राइट आंसर कैन बी गिवन. सोच समझ के बोलेंगे सब लोग. हाउ मेनी वेज कैन यू गिव द राइट आंसर? 1 way. There is only 1 way of giving the right answer. क्योंकि वो एक वे छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा. थिंक ऑफ इट कि सब, इमेजिन ऑल दी आंसर्स एक पैटर्न दे देगा, ट्रू 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 और बाकी चारों फॉल्स. वो एक ही वे ऑफ राइट आंसर. एनीथिंग दैट यू मार्क एक्सेप्ट दैट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो देयर इज ओनली 1 वे. थिंक ऑफ इट एज कि ओनली 1 सक्सेसफुल अटेम्प्ट. दिस इज द सक्सेसफुल अटेम्प्ट, बाकी सब विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट, number of ways in which at least one will be correct. Actually ऐसा करो, in which no correct. क्या रहेगा? no correct मतलब पक्का? श्योर? कैसा? इफ दिस इज द करेक्ट वे, इफ दिस इज द सैम्पल स्पेस, इफ दिस इज द करेक्ट वे, हाउ मेनी इनकरेक्ट वेज? बस. अगर योर आंसर इज, देर आर 4 questions, question 1, question 2,
Question 3. Question 4. If answer B is correct, how many answers are incorrect? 3. तो अगर तुम लोगों ने मुझे ये बोला है कि number of ways in which right answer can be given, that is one way. How many ways can the wrong answer be given? It will be 2 raised to 10 minus 1. नहीं समझा? Anything that is not this is incorrect. So अगर मेरा आंसर है, समझो 3 क्वेश्चन है. If 2 raised to 3 that is 8, that is a sample space. उसमें से the last answer is correct. अगर 8 में से last answer is correct, how many are incorrect? Is the first incorrect? Yes. Is the second incorrect? Yes. मैंने कुछ भी मार्क किया तो वो incorrect रहेगा, तो that is except the 8th one. So my answer is going to be 2 raised to n minus 1. That is 2 raised to 10 minus 1. Has everybody understood this? It's a common sense कि अगर एक correct है तो बाकी सब incorrect है. If one is correct, बाकी सब is incorrect. तुमको पता है कि ये गलत है तो you're not going to choose it. This is the right answer. And if you mark anything except that answer, that is going to be a wrong answer. तो अगर ABCD option है, if D is the correct answer, if you mark A, you will get wrong. If you mark B, you will get wrong. If you mark C, you will get wrong. But if you mark D, you will get it correct. So remember, this is 2 raised to n minus 1. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? Okay. Next question. How many ways? How many ways 4-digit even number be formed by using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. हाँ, फर्स्ट पार्ट. अच्छा, नॉर्मल चलो. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलो ठीक है, नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं. और कुछ कंडीशन ही नहीं दिया. बोलो 3 डिजिट 4 डिजिट तक. तो यहाँ पे ना मैं बना देता हूँ. ये फर्स्ट डिजिट, ये है सेकेंड डिजिट, ये है थर्ड डिजिट, ये है फोर्थ डिजिट. In how many ways can 4-digit even number be formed? First will be 3C1. 3C1. Next will be 4C1. 4C1. अच्छा, इवन नंबर में ऑल शुड बी इवन. ओनली लास्ट शुड बी इवन. ओके, मतलब मुझे लगा तुम लोगों को पता है इवन मतलब सब इवन रहना कैसा है क्या. नहीं, लास्ट डिजिट इवन. ओके, नाउ डू यू वांट टू चेंज योर आंसर? यस ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? ये आएगा 6C1 बराबर 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलो यहाँ पे क्या आएगा? 7C1. 7C1. 3C1. 0 can be also taken. 4C1. पक्का? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? 6 times 7 times 7 times 4. चलो, I'll include this condition. Repetition not allowed. You can't repeat the digits. 6C1 times 6C1 times 5C1 times. Wrong. What if there is 0 in the units place? तुमने यहाँ पे 0 नहीं लिया ना. मैं बोल रहा हूँ यूनिट प्लेस में 0 है. मैं बोल रहा हूँ सामने. चलो, एक वन ऑफ द कंडीशन इज यूनिट प्लेस में 0 है. हाउ विल यू अप्रोच नाउ? एंड रेपिटेशन अलाउड नहीं है. सो अगर 0 आ गया तो आगे 0 नहीं हो सकता. और अगर आगे पीछे 0 नहीं है, आगे भी 0 नहीं हो सकते. तो नाउ यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. लेट्स स्प्लिट इट डाउन. ठीक है, रेपिटेशन नॉट अलाउड. ठीक है, तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. आई जस्ट टेक दिस, इसके नीचे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. नाउ इफ आई स्टार्ट विथ रेपिटेशन नॉट अलाउड, सो सिंस यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स ब्रेक इट. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, केस 1 लेते हैं जहाँ पे 0 इज इन द यूनिट्स प्लेस.
बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे देखो हाउ मेनी 4 डिजिट बोला है, तो मैंने एक ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैंने ना 0 को चिपका दिया यहाँ पे, मतलब एक ही वे है जहाँ पे 0 आ जाएगा, सो दैट इट बिकम्स ईजियर। अब ये इवन नंबर भी है, 0 का भी टेंशन निकल गया, 0 निकल गया, रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है। सो नाउ इफ़ आई हैव टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर, ये है 1C1, एक ही 0 है, एक ही वे में यूज होगा, तो डेट इज द आंसर इज 1। नाउ कैन यू टेल मी in the thousands place how many options do I have? 6. So this will become 6C1 into 5C1 into 4C1 into 1, which becomes 6 times 5 times 4, which is 120 plus, ठीक है। अब 0 नॉट इन द यूनिट्स प्लेस, मतलब 1 2 3 4। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब 0 यूनिट्स प्लेस में नहीं है। अब यूनिट्स प्लेस में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे व्हेन 2 4 6 इन द यूनिट्स प्लेस, ठीक है, फॉर योर कंडीशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे को बताओ, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3C1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसमें से एक नंबर निकल गया है, कोई भी एक निकालो, किसको निकालने का? 2 को निकाल दिया, चलो 2 को निकाल दिया मैंने, देखो यहाँ से 2 को निकाल दिया। नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस आर? 5। यस, 5C1। चलो एक और नंबर को निकाल देते हैं, निकाल दिया। अब ये प्लेस में हाउ मेनी ऑप्शन है? 5C1। एक और नंबर को निकाल देते हैं, कितना रहेगा अभी? 4C1, विच विल बिकम व्हाट? 5 times 5 times 4 times 3, कितना होगा? 300। तो कैन यू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ वेज? 420 वेज। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्वेश्चन है रेपिटेशन अलाउड, कोई स्ट्रेस, रेपिटेशन अलाउड में कोई स्ट्रेस ही नहीं रहता है, प्रॉब्लम होता है रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो इवन है, नॉट इवन है, इज इट इवन नंबर? यस। ऑड नंबर का कुछ और कंडीशन रहता था, बट एक रूल है जो न्यूमेरिकल सिस्टम में फॉलो करता है, दैट सबसे पहला डिजिट कभी 0 नहीं होगा अनटिल अनलेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कि बोला 0 यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ कर सकते हैं लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर प्लेट, तो तुम लोग 0 सबसे पहले प्लेस में चिपका सकते हो, अदरवाइज यू कांट पुट 0 इन द यूनिट्स प्लेस। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स? चलो बोल। वो 0 का हमने प्लस नहीं किया, डायरेक्ट 4C1 करके किया, तो यहाँ पे चलेगा ना, कर सकते हैं 4C1 में, प्रॉब्लम वो नहीं है, यू कैन डू 4C1 ऑल्सो, बट 4C1 ले रहा है ना यहाँ पे। तो आर यू स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और हियर? तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। हाउ विल इट डिफाइन इट्स एन इवन नंबर? हाउ डू यू कम टू नो इट्स एन इवन नंबर? बाय द फर्स्ट प्लेस और द लास्ट प्लेस? सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व द लास्ट प्लेस फॉर इवन नंबर। ऐसे नहीं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाउ डू यू नो यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा? तूने क्या बोला? 4 इवन नंबर है, कौन सा इवन नंबर है? 0 1 0 2 4 6। तूने 4 में से एक सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कौन सा सेलेक्ट किया? कोई भी सेलेक्ट हो सकता है ना। तू 2 बोल रहा है, ये 0 बोलेगा, मैं 4 बोल रहा हूँ, शी विल टेल 6। चारों डिफरेंट है, चारों का डिफरेंट आंसर आएगा, बिकॉज इफ यू टेक 2 देन यू विल गेट 4C1 ईयर, 2 निकल गया, 0 भी नहीं आएगा। बट इफ आई टेक 0 ईयर, चेंज हो गया आंसर, रेपिटेशन नॉट रेपिटेशन। यहाँ पे 7 नंबर है ना मेरे पास, तो यहाँ पे इफ़ यू स्टार्ट विद 0 दिस इज हाउ इट कम्स, इफ़ यू विदाउट स्टार्ट विद 0। तो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वी डोंट नो, वी हैव टू प्लेस अ सर्टन कंडीशन कि आई एम स्टार्टिंग, यहाँ पे 0 एक अलग कंडीशन है, एंड यहाँ पे 0 छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इसलिए यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। ओके, आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन वेरी नाइसली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6, how many number of 5 digit
फर्स्ट पार्ट greater than 24,000 be formed. ठीक है, by using these digits, how many number of 5 digit greater than 24,000 be formed? 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5. एक कलर की 1 2 3 4 5. बोलो कैसे करेंगे? First digit have to be greater than 2. So 4C1. 24,000 बना सकते क्या? तो फर्स्ट डिजिट में 2 आएगा नहीं आएगा? 5C1. ओके ठीक है, चलो 5C1 ले लिया. देखो यहाँ पे ले लिया 5 आएगा क्या? पक्का आएगा? पक्का 2 3 4 5 6. अच्छा, रेपिटेशन है नहीं है, कुछ बोला है क्या? बोलो ना. हाँ जी, We can use repetition. वी कैन यूज रेपिटेशन. ठीक है, बोलो कैसे करेंगे? 3C1. अच्छा, 24,000 से ग्रेटर मतलब 24,001 भी आ सकता है, 34,000 भी आ सकता है, 44,000 भी आ सकता है, मतलब 42,000 43,000 भी आ सकता है, 54,000 भी आ सकता है, 65,000 भी आ सकता है. सो what I would suggest is, obviously you can get the answer. This is a 3-part question. It's a 3-part question. Now I'm going to teach you something. 3-part question है because first question is greater than 24,000, second question is less than 54,000, and third part of the question is between 24 and 54,000. अब यहाँ पे ना how you supposed to think, ये बहुत important रहता है. तो हम क्या करते हैं? We will split our work. How do we split our work? देखो ध्यान से देखो. How do we split our work? Condition 1. I will take number greater than 24,000 but less than 30,000. ठीक है, 24,000 से greater but 30,000 से less. ग्रुप करते हैं. 2 का फैमिली एक साथ, 3 4 5 का फैमिली एक साथ, 3 4 5 6 का फैमिली एक साथ. So can you tell me, if I have to form a 5-digit number, 1 2 3 4 5, I need number from 24,001 to 29,999. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो फर्स्ट प्लेस में 10,000 प्लेस में हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 1. सो ये हो जाएगा 1C1. Did you understand this? Anybody has any doubts? Okay. Can you tell me, in the thousands place, how many options are available? 2 options. 2 options. Repetition बोला है क्या? नहीं बोला है, ठीक है. So इस place में how many options are available? 2C1. 3 options. How 3? 24,001. 24. हाँ, तो 24 आएगा, 23 आएगा क्या? नहीं आएगा. तो कितना आएगा यहाँ पे? 4 5 6. तो क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड. एनी डाउट स्टिल हियर? वापस पूछ रहा हूँ, एनीबडी हैज एनी डाउट स्टिल हियर? ठीक है, चलो 24 पास हो गया. नाउ नेक्स्ट प्लेस में, दैट इज द 100th प्लेस, हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? 7C1 into 6C1. पक्का? 0 cannot come. 0 cannot come. Why? Because it should be greater than 24,000. So 25,000 आ सकता है क्या? 25,000 भी आ सकते ना, तो 6C1 क्यों ले रहे हैं? 7C1 and then -1. 7C1 बराबर. इज दिस करेक्ट? क्यों नहीं? वाई इज इट नॉट करेक्ट? बिकॉज 24,000 कैन ऑल्सो कम. यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 भी ले लिया. देखो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 24,000 बोला है, तो तुम लोगों ने 2 यहाँ पे ले लिया. 3 4 5 6 में अगर 4 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है. तो ये अवॉइड करने के लिए वी राइट -1. कि वो एक कंडीशन है, अगर 24,000 बना
तो आई कैन एलिमिनेट द कंडीशन. सो दिस इज द एरिया फॉर 24,000 से ग्रेटर और 30,000 से लेस. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? बिकॉज देखो एक कंडीशन है जहाँ पे 24,000 बन सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने जब बोला ना 24,000, ये -1 इसलिए लिखा है बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली वन पॉसिबिलिटी कि द नंबर दैट इज फॉर्म विल बिकम 24,000. सो वी राइट -1 here. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या रहेगा. माई सेकेंड कंडीशन विल बी ग्रेटर देन 29,999. बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 बिकॉज 30,000 का इंक्लूडेड नहीं है. So second condition will become greater than equal to 30,000. So can you tell me 1, 2, 3, 4, 5 how many conditions are possible here? आराम से बोलो. फर्स्ट कंडीशन में कितना कंडीशन रहेगा? 4. ओके, क्या आएगा यहाँ पे? 4C1 इंटू 7C1 इंटू 7C1 इंटू 7C1 इंटू 7C1. तो इसका आउटकम क्या रहेगा? 4 times 7 times तो मेरा टोटल क्या रहेगा बताओ? टोटल आउटकम 4 into टोटल इज दिस प्लस दिस. तो आई कैन राइट 3 into 7 into 7 into 7 ओके -1 प्लस 4 into 7 into 7 into 7 into 7. Is this correct? So basically this plus this -1. Anybody has any doubts here? Has everybody understood this? So देखो मैंने क्या किया, I have formed a number that is greater than 24,000. How did I form a number that is greater than 24,000? मैंने ना दो पार्ट में स्प्लिट किया. एक को लिया है 24 से 30 के बीच में एंड नेक्स्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 ले लिया. अब द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नंबर लेस देन 54,000. ठीक है, बी पार्ट नंबर लेस देन 54,000. अब उल्टा करता है. हाउ विल यू डू उल्टा? बोलो. सबसे पहला ग्रुप क्या रहेगा? ऑलवेज टेक वन फैमिली. ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? 5 50 ना. तो फर्स्ट नंबर विल बी, इट विल बी लेस देन 54,000 बट ग्रेटर देन 49,999. समझा सब लोग को? बिकॉज एक नंबर को एलिमिनेट करो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहला कंडीशन विल बी नंबर विल बी ग्रेटर देन, सो फर्स्ट कंडीशन विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड लेस देन 54,000. तो 1 2 3 4 5. फर्स्ट कंडीशन में कितना कंडीशन आएगा? फर्स्ट वे में 1 बस 5 ही आएगा. नहीं समझा? 5 ही आएगा ना. 50,000 और 54,000 में 4 आएगा क्या फर्स्ट नंबर पे? नहीं आ सकता. फिर 5 की फैमिली को बिलोंग करता है. चलो 5 निकल गया. क्या क्या आएगा बताओ? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. 4 आएगा क्या? पक्का? 4C1 टाइम्स कुछ भी आ सकता है. 7C1 टाइम्स 7C1 टाइम्स 7C1. वाई -1? 4 है ही नहीं ना. हैव यू टेकन 4? नॉट -1. सो माई आंसर विल बिकम 4 times 7 times 7 times 7. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. फर्स्ट पार्ट प्लस नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा? लेस देन 50,000. सो कैन यू टेल मी नाउ, अभी इसका आंसर बताओ. लेस देन 50,000 क्या रहेगा? लेस देन 50,000 मतलब फर्स्ट में क्या ऑप्शन रहेगा? 4 की 6 6C1 4C1 0 आएगा. वेरी गुड. तो क्या आएगा यहाँ पे? 4C1. 4 मतलब क्या क्या आ सकता है वो तो बताओ. 1 2 3 4 5 आएगा. 0 आएगा? नहीं आएगा. नेक्स्ट में क्या आएगा? 7C1 टाइम्स टाइम्स टाइम्स. लवली. ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा वही बताएगा. 4 times 7 times 7 times 7 times 7. तो टोटल क्या रहेगा बताओ? both का addition
विच इज 4 times 7. 4 times 7 cube plus 4 times 7. 4 times 7 raised to 4. Is this correct? अब last part of the sum. C part. Greater than 24,000 and less than 54,000. We'll take total. तुमको सिर्फ ध्यान से ना कंबाइन करना है आंसर्स, एंड दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन. इमेजिन दिस क्वेश्चन हैज बीन स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स सो दैट वी अंडरस्टैंड. अगर मैं डायरेक्ट ये करता था ना बहुत कंफ्यूजन होता था. सो नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी नीड अ नंबर, एंड 3 पार्ट ऑफ द सम हो गया. नाउ टेल मी हाउ विल यू कंपेयर सो दैट द नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 24,000 एंड द नंबर हैज टू बी लेस देन 54,000. तो बोलो क्या रहेगा फिर? We'll take total cases greater than 24,000 and minus total cases less than 54,000. माइनस करना है क्या? नहीं, ठीक है. तो यही फॉलो करते हैं. ग्रुपिज्म कर रहे हैं ना. सबसे पहले क्या करेंगे? पहला कंडीशन क्या रहेगा? ग्रेटर देन 24,000. गाइस ग्रेटर देन 24,000 का कंडीशन बताओ ना क्या है? 3 इंटू, यहाँ पे लिखे ना 3 इंटू 7 माइनस 1. ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया. व्हाट इज द आंसर? 3 इंटू 7 क्यूब माइनस 1. सेकेंड पार्ट क्या है? 30,000 से लेकर 49,999 बराबर. अच्छा ये बताओ क्या कंडीशन रहेगा? इससे कंडीशन बताओ क्या रहेगा? 1 2 3 4 5. इसका कंडीशन बताओ क्या रहेगा? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 3 and 4. क्या रहेगा? 4 मतलब 2C1 लवली इंटू 7C1 इंटू 7C1 इंटू 7C1 इंटू 7C1. तो आंसर क्या बताओ? 2 इंटू 7 raised to 4. नाउ टेल मी लेस देन 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड लेस देन 54,000. इसका आंसर बताओ क्या रहेगा? 4 into 7 cube. 4 इंटू 7 क्यूब. अब मुझे आंसर बताओ टोटल क्या रहेगा? सो इट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस. Has everybody understood? The total answer would be, it will become 3 into 7 cube minus 1 plus 2 into 7 raised to 4 plus 4 into 7 cube. Okay. So this sum is basically split into parts so that you have a better understanding how you're supposed to proceed with this sum. डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोला नहीं कर सकते, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंस यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, PNC फॉर द फर्स्ट टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन. कि अगर डायरेक्ट करेंगे ना द सेम एग्जाम्पल ना, इफ आई गिव यू द इवन वाला, इट माइट लुक वेरी इजी, बट वो एक जीरो की वजह से वी डोंट नो वेदर यूनिट प्लेस में जीरो है कि 1000 प्लेस में जीरो है या 10,000 प्लेस में जीरो. अब रेपिटेशन अलाउड है तो स्ट्रेस नहीं था, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मेरा जीरो कहाँ पे प्लेस होगा, और जहाँ पे जीरो प्लेस होगा दैट पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुमने जीरो को निगलेक्ट कर दिया ना, यू विल गेट हाफ, मतलब यू विल गेट एन आंसर जिसमें एटलीस्ट 60 to 80 या 100 का डिफरेंस रहेगा. तो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स. ठीक है, चलो क्वेश्चन. ओके, फाइंड 3-digit number containing first part, containing only 17. चलो 17, या तो मैन्युअली 100 से लेकर 999 तक कैलकुलेट करो कितने बार एक ही 7 आ रहा है कौन कौन नंबर्स में, उसमें पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा. सेकंड कॉमन सेंस. बोलो हाउ डू आई राइट दिस? 3-digit नंबर बोले तो ये हो गया मेरा हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स. 3 ways 7 can be put. One way in hundreds place, one way in tens place, one way in ones. ठीक है, तो व्हाट डू आई राइट? We can सुनने में अच्छा लगा, लिखो कैसा मेरे को बता, so पूरा खेल लिखने का. case 1 we can put केस 1, चलो इसको केस 1 लेते हैं, इसको केस 2 लेते हैं,
और इसको केस 3 ले लेते हैं. कहाँ पे लिखो 7? 100s. हंड्रेड्स प्लेस में 7 ले लेंगे. चलो यहाँ पे 7 फिक्स हो गया. ठीक है, 1 हो गया. यहाँ पे 7 ले लेंगे, यहाँ पे 1 हो गया. और यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 1 हो गया. ठीक है, 1 वे हो गया. यहाँ पे क्या आएगा? 9C. श्योर. यहाँ पे क्या आएगा? 8C1. We can repeat it. If repetition Repeat happens, it around 9C1. 9C1. श्योर. Yes. 7 भी आएगा, नहीं. यहाँ पे 7 आएगा. नहीं 8C1 and 8C1. 9C1 8C1 8C1. 9C1 होगा. 9C1. कौन सा एक नंबर नहीं आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा. कितना नंबर हो गया? वेरी गुड. Times 9C1. पक्का? रेपिटेशन इज अलाउड. ठीक है, हिडन है. 7 रिपीट नहीं होगा, बाकी सब रिपीट हो सकते हैं. अच्छा चलो यहाँ पे 8C1. 9C1 श्योर. 81 प्लस 72 प्लस 72 कितना आएगा? जल्दी कैलकुलेट करो. 2 to 3. 2 3 तो हो ही गया ना. क्या इतना फास्ट मैथ्स नहीं करने का बेटा? Has everybody understood this? I told you na, the most basic sum is where you will lose marks. 0 है नहीं है. Your PNC will test you on this. Divisible by 2, 3, 5. Factor है नहीं है. Repetition allowed, not allowed. Number of outcomes in true, false, yes, no. Girl, boy. In how many ways you will pass, you will fail. Pass बोला है. पास मतलब सब में पास. फेल बोला है. फेल मतलब एक में भी फेल तो सब में फेल. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ सम्स. अब इसमें ओनली 1/7 बोला है. ठीक है, गुड. हाँ, यू गाइस हैव डन गुड. सेम क्वेश्चन. ओके, सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वी कैन कंपेयर ऑल्सो. ओके, ठीक है, आंसर आ गया था. सेकेंड पार्ट. At least 1/7. Let's fight, guys. How will you solve this? एकदम सिंपल. At least 1 का मतलब क्या होता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता 2 भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है. तो ये तो पता है 777 आएगा. कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट 707 भी आ सकता है, 177 भी आ सकता है, 717 भी आ सकता है, 771 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. हाउ डू आई राइट दिस व्हेन आई राइट अबाउट एटलीस्ट 1/7? बोलते रहो. चलो 3 केसेस जिसमें एक 7 रहेगा, जिसमें 2 7 रहेगा. अब एक बात याद रखो. अभी समझो मैंने बोला 7 डिजिट नंबर कंटेन्स एटलीस्ट 1/7. तुम 7 केस लेगा. 9 digit number contains at least 1/7. You'll write 9 cases. Never do that. अगर ये गोल्डन वर्ड आया, गोल्डन वर्ड at least 1, do the opposite. at least 1 का गुरु मंत्र होता है टोटल आउटकम्स माइनस नो आउटकम, नन. टोटल माइनस नन. ये प्रोबेबिलिटी में याद आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, याद रखो. टोटल माइनस नन. कंडीशन नंबर 1, हाउ मेनी टोटल 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? 10C1, 10C1, 10C1. हाउ मेनी टोटल 3 डिजिट नंबर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू यू? 1000 नंबर नहीं है ना बेटा, कैसा है? 999. मतलब क्या रहेगा? 9 × 10 × 10 कितना होएगा? हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर? 900 ना. 3 डिजिट नंबर ना. एक 100 से स्टार्ट होता है. 899 नंबर्स आर देयर. 100 भी है ना. वाओ,
Very nice, guys. 1000 numbers are there. 100 to 900. 100. No, very nice. Arey, I should have started with this. Sorry, guys. Simple question. How many 3-digit numbers are there? 900. 9. मैं जब स्कूल में था तब 900 था. अभी हो सकता है चेंज हो गया रहेगा. 100 बोलते कि can't relate as I don't feel like 100. I am 99. ऐसा नहीं हो सकता guys. याद सिंपल कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन गाइज. मेरी टीचर बोलती थी, तुमको बोल रहा हूँ. 9C1 इंटू 10C1 इंटू 10C1 कितना आएगा? 900. देर आर 900 नंबर्स. काउंट करो घर पे जाके. प्लीज टेक टाइम 10 मिनट्स एंड स्टार्ट काउंटिंग. 100, 101, 102. कॉमन सेंस. 101 से 200 कितना है? 100. 201 से 300 कितना है? 100. ऐसा 900 899 नंबर्स रहेगा. प्लस 1 ऐड कर दो. बिकॉज 900 टू 999 आर 99 नंबर्स. और वो अलोन जो 100 है ना, उसका पेयरिंग हो जाता है. वेरी नाइस गाइस, वेरी गुड. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. वेरी नाइस. सो टोटल माइनस नन. टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास? 900 माइनस. अब हम लोग नन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. आई हैव टू फॉर्म अ 3-digit नंबर जिसमें 7 नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. How many options will be here? 8C1 यहाँ पे, 9C1 यहाँ पे. श्योर? ठीक है. कितना हो जाएगा? 8 इंटू 81 कितना आएगा? 252. श्योर? पक्का ना? चलो ठीक. सो 899 नंबर्स नहीं है, 900 नंबर्स है. लास्ट टाइम आई रिमेंबर तो 899 नंबर्स था. सो ये हो जाएगा 8 टाइम्स क्या लिखा मैंने? 8 times 81 लिखा था ना. ठीक है. कैंसिल. तो दिस इज 252 वेज. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स? चलो. सो दीज आर द सम्स दैट वी डू टुडे. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स बेटर. Okay, so इतना this is where your foundation comes basic. You might feel oh my god PNC. कुछ नहीं है PNC. मैंने क्या बोला? जो पूछा है वही सॉल्व करो. You are none of the students will be assuming. Assume ही नहीं करना है. तुमने assume किया ना, आंसर रॉन्ग है. Assume नहीं है. डेटा दिया है. What has been asked? This has been asked. What has been asked? This has been asked. Nothing. And ये रिमार्क याद रखेंगे गाइस. ये प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होता है. At least one. ये at least one. Has everybody understood this? चलो. We'll stop for the dinner.